हे गाइज, वेलकम टू द चैनल। तो गाइज एक बार फिर से एक नई वीडियोस में आप लोगों का स्वागत है। तो गाइज आज मैं आप लोगों को लेकर के आया हूँ पटना सेंट्रल स्कूल, जहाँ पे कि एनुअल डे 2023 मनाया जा रहा है। छोटे छोटे नन्हे बच्चों का परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। तो गाइज वीडियोज़ में लगातार बने रहें और वीडियो को अंत तक ज़रूर एंजॉय करें। तो चलिए चल करके देखते हैं पटना सेंट्रल स्कूल का एनुअल डे। जोरदार तालियां अंतर्राष्ट्रीय संघ और उसके उनके साथ उद्योग मंत्री हमारे साथ आ गए। जोरदार तालियां के लिए बजा करके बहुत सुंदर आपकी जगह परम पूज्य सम्मानित अतिथि को भाषण कर लें। बहुत कहने की जरूरत नहीं है, परम पूज्य का परिचय तो हमें क्या है। एक बार जोरदार ताली बजा करके इनका बहुत सुंदर ये लम्हा, बहुत सुंदर ये तस्वीर, बहुत ही प्रेरक तस्वीर प्रदान करते हुए अंतर्राष्ट्रीय संत मैं शिक्षा हूँ, बहुत ही क्रांतिकारी पुस्तक जो भी मैंने चर्चा की, नई शिक्षा नीति का वो मुख्य फार्मूला, जीवन कैसे आनंदित बनाए। गीता की वो पुस्तक जिसकी बड़ी प्रशंसा हुई है, प्रधानमंत्री ने भी इस पर हस्ताक्षर किए। Privileged to have with us Shri Shailendra Kumar Singh ji, President, Advocate Association of Patna High Court. So round of applause for Sir. एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। श्री शैलेंद्र कुमार जी, आप प्रेसिडेंट हैं एडवोकेट एसोसिएशन ऑफ पटना हाई कोर्ट, और सबसे बड़ी बात है चेयरमैन कोऑर्डिनेटिंग कमेटी के भी आप जोरदार ताली होनी चाहिए। बहुत सुंदर परम पूज्य के द्वारा, उनकी श्रेष्ठ रचनाओं के द्वारा गीता बहुत ही लोकप्रिय, महाराज ने उसकी समीक्षा लिखी। एक बार जोरदार ताली पुस्तक के लिए, बहुत सुंदर। A great round of applause for guests. एडवोकेट एसोसिएशन ऑफ पटना हाई कोर्ट, जोरदार ताली होनी चाहिए। एक बार सर का बहुत ऐतिहासिक नाम भी है, बहुत सुंदर। एक बार जोरदार ताली आदरणीय श्री अंगद कुंवर जी के लिए। मैं शिक्षा हूँ और वो गीता पर परम पूज्य के वो To stand before you all and extend my warm greetings on behalf of the entire ASPCS family. I extend our gratitude and sincere welcome to our chief guest, Mr. Sameer Mahasin, Industry Minister of Bihar, Mr. Shailendra Kumar Singh, President of Advocate Association of Patna High Court, Mr. Angad Kuwar, former Vice President of Advocate Association of Patna High Court, and Mr. Mrityunjay Tiwari, Speaker of Rashtriya Janata Dal. Give them a big round of applause. Sir, your presence means a lot to the students and teaching community of our school. We acknowledge your contribution to the field of social and humanitarian welfare. Your presence is more than inspiring to all of us. I would also like to express our gratitude to our loving Guru,
guardian, philanthropist, and beacon of modern school education, Acharya Shri, who fortunately is our chairman as well. We all know it very well that he is the man. हिमालय के शिखरों पर उससे ऊपर चढ़ना है, चढ़े हिमालय के शिखरों पर उससे ऊपर चढ़ना है, हमें हिमालय के शिखरों पर नया हिमालय गढ़ना है, नया हिमालय गढ़ना है। वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित इस वार्षिक महोत्सव में आप सभी का स्वागत वंदन। मैं सौम्या यादव इस वार्षिक महोत्सव की होस्ट आप सभी का स्वागत करती हूँ और हमारे आचार्य श्री परम पूज्य कहते हैं कि इस युग के बच्चे केवल 18 अध्याय गीता के पढ़े नहीं अपितु 19वां अध्याय लिखे। A very pleasant good afternoon and welcome everyone to the much awaited cultural program of the year, the annual function of the very prestigious, esteemed and special institution Acharya Sudarshan Patna Central School. I, Soumya Yadav, truly honored to be your host for this spectacular occasion filled with energy, enthusiasm and of course unbeatable talent. We are thrilled to see such a fantastic turnout in the premises of ASPCS. And thanks to you all for being the witness of this occasion where our loving Guru Acharya Shri reciting the tales of cultural heritage combined with the holistic development and nurturing of the young minds. This year's cultural program, mark my words, is not just a mere showcase of talent. Indeed, a journey through various different traditions, combines many bodies enduring a single soul, that is Hindustani. Now I'd like to call my next anchors to host for the program. Thank you everyone. Present on the dais, respected guardians and my lovely students. First of all, I would welcome all the dignitaries and our guardian who came here to grace this occasion. Today we are celebrating our 43rd annual function in the name of Vasudhaiva Kutumbakam. My dear guardians, we all know that this school runs on the vision of our Acharya Shri. Under his guidelines only, we are conducting the classes, every activities, everything based on the vision of our Acharya. हम लोगों को खुशी है कि आपके बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। तमाम आपको मेरी शुभकामना आशीर्वाद भगवान आपको स्वस्थ रखे। थैंक यू वेरी मच। बहुत सुंदर ये परम पूज्य का दिवाली शिक्षा को बढ़ा रहे हैं।
बहुत सुंदर, अद्भुत अद्भुत। हमारे मुख्य अतिथि और आदरणीय विधायक श्रेयाश्री के इस बहुत प्रभावित, वो स्कूल की कोकिला है। परम पूज्य के मार्गदर्शन में हम लोग जो उपलब्धियों को छू रहे हैं उसमें एक है बहुत सुंदर। एक बार जोरदार ताली इस बड़ी उपलब्धि के लिए। गौरव तुम श्री राम और माता सीता का प्रथम मिलन हुआ था और इस बीच उनके हृदय में प्रेम उजागर हुआ था और आंखों से मधुर संस्कार टपका था और इसी अलौकिक मिलन को संगीतबद्ध किया है हमारे आचार्य श्री ने। और इस संगीत, इस प्रस्तुति, इस नृत्य की बोल है जनक जी के बाग में रघुवर आयो सखी। सो जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें।
बननी चाहिए। तो यश, क्या हम अगले प्रोग्राम की तरफ बढ़े? तो अगले कार्यक्रम की प्रस्तुति के लिए मैं श्रीमान हर्ष को बुलाना चाहूंगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, वड़क्कम आप सभी को। मैं आपका होस्ट हर्ष। कार्तिक मास नाकासे बदरी, कार्तिक मास नाकासे बदरी, सखिया निर्मल रतिया खेलब झुमरी। इस लोकमासा झुमरी गीत की रचना और परिकल्पना हमारे शिक्षा शिरोमणि आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज ने की है, जब वे तीसरी बार संगीतमय श्री राम कथा सुनाने मॉरिशस गए थे। इसमें कार्तिक माह की शुचिता और निर्मलता का वर्णन है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कार्तिक महीना शरद ऋतु का कितना पावन महीना होता है। तो आइए इसी लोक नृत्य को लेकर आ रही हैं हमारे आचार्य श्री सुदर्शन पटना सेंट्रल स्कूल की छात्राएं। तो एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। सखिया निर्मल
कृपाल यादव के लिए, और इस संस्था से तो उनका बहुत लगाव रहा है, तो हम इनका सम्मानित पुष्पगुच्छ के द्वारा परम पूज्य पाटलिपुत्र के सांसद, बहुत चर्चित व्यक्तित्व आदरणीय श्री राम कृपाल, आप जोरदार तालियां होनी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय द्वारा सम्मानित बहुत चर्चित व्यक्तित्व पाटलिपुत्र के सांसद, लोकप्रिय नेता आचार्य श्री सुदर्शन पटना सेंट्रल स्कूल से इनकी बड़ी ममता रही है, बहुत प्यार रहा है। और व्यस्त अब आदरणीय माननीय राम कृपाल यादव को सम्मानित, जोरदार तालियां। ये सांसद का सम्मान माना जाता है कि अतिथि का सम्मान है। हमारे एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हाथ मिलाते, परम पूज्य द्वारा रचित ये पहले संगीत में राम कथा, के आज इस प्रांगण में सबसे पहले परम पूज्य पितातुल आदरणीय आचार्य सुदर्शन जी, इस स्कूल के आदरणीय प्राचार्य ओम प्रकाश जी, सभी सम्मानित अतिथिगण, सभी स्कूल के आदरणीय शिक्षकगण, यहाँ भारी संख्या में उपस्थित सभी सम्मानित अभिभावकगण, प्यारे बच्चों, देवी और सज्जनों, इस स्कूल के सभी कर्मचारीगण और अन्य सभी सम्मानित अतिथिगण, मुझे बहुत प्रसन्नता के साथ कहना पड़ रहा है कि आज का ये जो पटना सेंट्रल स्कूल इस प्रांगण में मैं खड़ा हूँ, कभी एक छोटे भवन से प्रारंभ हुआ था। इस स्कूल से और स्कूल परिवार से और ख़ास तौर पर
आचार्य जी से और पूरे परिवार से मेरा बहुत ही 30-35 साल का लगाव है। बहुत आत्मीय संबंध रहा है और मुझे ऐसा लगता है आचार्य जी से जब भी मिलता हूँ तो लगता है मैं अपने पिता से मिल रहा हूँ, अपने गुरु से मिल रहा हूँ, अपने एक शिक्षाविद से मिल रहा हूँ, अपने वो व्यक्तित्व वाले बड़े व्यक्ति से मिल रहा हूँ जिन्होंने अपने माध्यम से बिहार के कोने कोने में ही नहीं देश के अन्य भागों में भी शिक्षा रूपी प्रकाश को फैलाने का काम किया है। ये बहुत बड़ी बात है। बिहार जैसे पिछड़ा और गरीब प्रदेश में शिक्षा की रोशनी कष्ट उठा करके लोगों तक पहुंचाना एक बड़ा तपस्या का काम है और आचार्य जी तो सचमुच में एक तपस्वी हैं जिन्होंने एक छोटे स्तर पर प्रयास किया। आज ईमानदार प्रयास बिहार के सीट पे आ जाइए ना सर, सीट पे आ जाइए। हर कोने में फैलाया शिक्षा की रोशनी। अब तो देश के कई अन्य जगहों पर फैलाने का काम कर रहे हैं। मैं अभी बैठे बैठे सीढ़ी है ना, सीढ़ी से चल जाइए। आचार्य जी से मैं पूछ रहा था, परम गुरु जी बताइए कि कितने ब्रांच चलाए जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि प्रदेश से लेकर देश के विभिन्न भागों में लगभग 40 ऐसी शाखाएं के माध्यम से बिहार में ही नहीं देश के विभिन्न इलाकों में शिक्षा का प्रकाश फैलाने का काम किया जा रहा है। पटना सेंट्रल स्कूल के अलावे कृष्णा निकेतन भी है जो खासतौर पर बेटियों के लिए मैं समझता हूं कि बहुत ही अद्भुत काम किया है। पिछले कुछ वर्षों में मैंने आचार्य जी को देखा कि स्वयं झोपड़ियों में जाकर के जो असमर्थ बच्चे हैं, परिवार हैं, उनमें अवेयरनेस फैलाना, शिक्षा की जो अहमियत है आज के युग में एक बड़ा काम है। बहुत कोई अगर कर सकता है तो एक तपस्वी कर सकता है जो आचार्य सुदर्शन जी है। माहौल ऐसे परिवेश को जिंदा रखने की आवश्यकता है, यहाँ बहाल करने की आवश्यकता है ताकि पढ़ाई का माहौल ठीक ढंग से हो सके और हमारे बच्चे यहीं रह करके गांव के स्कूल में, गांव के कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ करके अब अच्छे ढंग से पढ़ करके आगे बढ़ने का काम कर सकें। मुझे पूरा भरोसा है, मैं ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा, मुझे पूरा भरोसा है। मैंने देखा बच्चों का टैलेंट। तो ये स्कूल केवल बच्चों को शिक्षित नहीं कर रही है, सर्वांगीण विकास कर रही है और क्वालिटी एजुकेशन दे रही है। आज के ज़माने में कंपटीशन इतना अधिक हो गया है, प्रतियोगिताएं इतनी अधिक बढ़ गई है कि जब तक क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलेगा तो मैं समझता हूं कि अब वो डिग्री लाओ नौकरी पाओ का ज़माना चला गया। अच्छे ढंग से क्वालिटीपूर्ण शिक्षा की आवश्यकता है। हमारे बच्चों में कोई कमी नहीं है। मैं समझता हूं कि ये स्कूल पिछले वर्षों से मैं देख रहा हूं कि इस स्कूल का रजिस्ट्रेशन 1980 में हुआ और 1980 से लगातार ये विश्वास अभिभावकों का जीतने का काम किया है, पटना वासियों का, नगर वासियों का जीतने का काम किया है और इसीलिए ये आगे बढ़ने का काम किया है। तो मैं समझता हूँ कि मजबूती के साथ मैं बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ स्कूल के आचार्य जी को, इनके पुत्र को जो मेरे छोटे भाई के तरह हैं और परिवार के जितने स्कूल परिवार के लोग हैं कि आप जिस मजबूती के साथ, इच्छा शक्ति के साथ बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अच्छा शिक्षा दे रहे हैं, ईश्वर करे और इसी तरह से पढ़ाइए और शिक्षा की रोशनी देश के विभिन्न भागों में फैला रहे हैं, बिहार के कोने कोने में फैलाने का काम कीजिए और मुझे भरोसा है आपका यह प्रयत्न सार्थक परिणाम लाया है, आगे भी लाएगा। और ये तमाम बच्चे जिनके अभिभावक बहुत ही विश्वास के साथ इस स्कूल में प्रवेश दिलाते हैं और मैं समझता हूं कि उनके विश्वास को आपने जीता है और पूरी मजबूती के साथ आप अपनी क्षमता के साथ पटना सेंट्रल स्कूल के जितने आदरणीय शिक्षक हैं, प्राचार्य हैं, सब लोग मेहनत करके बच्चों को आगे बढ़ाने का मौका दे रहे हैं। मैं इन तमाम बच्चों का भविष्य हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी आज इस अवसर पर मैं कहना चाहूँगा विकसित भारत की चिंता कर रहे हैं।
और आज़ादी के 75 साल हो गए। अगले 25 साल जब 2047 आएगा तो विकसित भारत हो जाएगा, उसमें शिक्षा की बहुत बड़ी भूमिका होगी। ये बच्चे ही भाग्य के विधाता हैं। ये बच्चे निकल करके आगे आने वाले समय में यहाँ से अच्छी शिक्षा ज्ञान प्राप्त करके आगे बढ़ेंगे, देश के विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगे, विभिन्न भागों में जाएंगे और भारत माँ की सेवा करके राष्ट्र को मजबूत तो करेंगे ही, अपने परिवार, अपने घर और हम सब लोगों का शान आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम पूरे परिवार, सेंट्रल स्कूल परिवार को बहुत दिल से आभार व्यक्त करते हैं। आचार्य जी का बिना नमन करते हुए सबको शुभकामना और बधाई देते हुए, नया वर्ष भी आ रहा है। आज मैं समझता हूँ कल क्रिसमस भी है। बच्चों ने भी कुछ झांकियाँ दिखाई है। हम सबको क्रिसमस और आगे नए वर्ष की शुभकामना देते हुए, सभी अभिभावकों को प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। So, in the next segment, we would like to take you all to Gujarat. But why we shall go to Gujarat? Is there something very special? Oh yeah, don't you know? Gujarat is a manufacturing hub of our country, India. It is famous for its temples, towns and historic places, monuments like the Statue of Unity, which is of Sardar Vallabhbhai Patel. And how can we forget the Ran of Kutch and the major dance form that is Garba? Oh yeah. So without any delay, now I would like to call the girls of Standard 9 to perform on the song Mehndi To Badi Malve. So give a huge round of applause for them.
to our own native land. So let's take a round to our neighboring state, Jharkhand. वेट मुझे एक शायरी याद आ रही है. Oh great, इरशाद इरशाद. खनिज संपदा जहाँ भरपूर है, खनिज संपदा जहाँ भरपूर है, हरियाली जिसकी पहचान है, हरियाली जिसकी पहचान है, भारत का बहुल प्रदेश अपना प्यारा झारखंड है. वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है. And you know, Jharkhand is also known for its traditional music and dance. So let's see it by the performance of our students of middle section. So give a huge round of applause for them. बांस मुरलिया पिया परदेसिया नहीं आले.
PetSmart Holi. So give a big round of applause for them. कोलैबोरेटेड हुए हैं कुछ टाइम पहले, जब माइक्रोसॉफ्ट का एक बहुत बड़ा ग्रैंड इवेंट था, तो वहाँ पे सर ने इस अपॉर्चुनिटी को पहचाना। जैसे कि शुरुआत में सर ने आप लोगों को बताया कि रोबोटिक्स स्टेम प्रोग्राम यहाँ पे आपके बिहार में सबसे पहला स्कूल है। आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि नॉर्थ इंडिया का ये पहला स्कूल होने जा रहा है जिसके अंडर में माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, HP, SAP जैसे ब्रांड का सर्टिफिकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम डायरेक्ट आपके स्कूल में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होने वाला है कि आपके बच्चे ना कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करेंगे कंप्यूटर में, बल्कि जब वो AI पढ़ेंगे तो उनको AWS सर्टिफाइड करेगा, जब वो डेटा साइंस पढ़ेंगे तो उनको माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है आप सभी बच्चों के लिए। और अभी मैं बहुत कम समय लूंगा क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा बहुत ज़्यादा क्रिएटिव चीज़ें हुई है। मेरा भी मन कर रहा था कि मैं भी कुछ शायद पार्टिसिपेट कर सकूं, लेकिन शायद एज जा चुकी है। तो हम लोग जो यहाँ पे कोलैबोरेशन कर रहे हैं उसमें गेम डिजाइनिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, वेब डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की तरह बहुत सारे क्रिएटिव एंड इनोवेटिव प्रोग्राम होंगे।
और आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि अभी एक स्टेज पर मैं एक बहुत छोटे से लड़के को बुलाऊंगा जो कि सिर्फ 2 मिनट का समय लेगा और वो आपको बताएगा, आप उसका कॉन्फिडेंस देखिएगा तो आपको भी समझ में आएगा। अगर आप भी चाहेंगे कि आपके भी बच्चे इसी तरीके से फुल स्टैक डेवलपर बने, यश जिनका नाम है सिर्फ 11 साल के हैं और महीने के और क्लास 6 में है और महीने के 25 से 30 हजार रुपए की अर्निंग करते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी सीखे जिससे कि वो घर बैठ के अच्छे पैसे कमाए, क्योंकि आपको भी पता है कि फॉरेन कंट्रीज में ज्यादातर क्या होता है कि वहां पे इंटर के बाद लोग प्लानिंग करने लगते हैं कि हमारा बच्चा एक अच्छी जॉब पे चला जाए, लेकिन बिहार में कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि हम बैंक एसएससी की तैयारी करें। तो हम लोगों को इस मिथ को खत्म करना है। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके स्कूल में आया हुआ है जो कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, HP, SAP और AWS जैसे ब्रांड का सर्टिफिकेशन हम लोग कोलैबोरेशन करके जानना चाहते हैं। और इसी के साथ मैं 2 मिनट के लिए सिर्फ यश शर्मा को बुलाना चाहूंगा एंड सैफ को, जो कि 2 मिनट में ही सिर्फ एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से उनका एक्सपीरियंस का क्या रहा है। एंड गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम यश शर्मा है और मैं 11 साल का हूँ। मेरे को बिहार में बेरोजगारी इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे एक दिक्कत है, लोग ग्रेजुएशन करने के बाद सोचते हैं कि पैसा कैसे कमाए, और मैं यहाँ 11 साल का ही हूँ और महीने के 25,000 तो कमा ही लेता हूँ, क्योंकि आप तो जानते हैं कि बिजनेस क्या होता है, जब चाहे उड़ जाए, जब चाहे गिर जाए, लेकिन मेरा प्रॉफिट है, मेरा लॉस नहीं होता। पता है आपको मेरी मम्मी क्या करती है? मैं मम्मी को अपने पैसे दे देता हूँ हर महीने, मम्मी पॉकेट मनी के नाम पे सिर्फ 500 रुपये देती है और कहती है कि जब बड़े हो जाना तब और तुम्हारे पॉकेट मनी बढ़ेगी। तो मैं ये कोडिंग कैसे सीखा, फुल स्टैक मतलब मैं एक कोडर कैसे बना, प्रोग्रामर कैसे बना, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अमितेश सर को, क्योंकि इन्होंने मतलब इनकी जो कंपनी है एसटीएस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, कोडिंग के बारे में भी सिखाया। और मैं एक और आदमी का सबसे ज़्यादा धन्यवाद करूँगा, मिस्टर सुदर्शन सन को, उनकी वजह से मैं स्टेज पे आ पाया हूँ यहाँ पे और आप लोग से बोल पा रहा हूँ। देखिए, टाइम इज़ टू इम्पॉर्टेंट। टाइम के साथ अगर आप खेलेंगे ना तो आप बहुत बड़े आदमी बनोगे, बहुत पैसा कमाओगे। आप समझो एज इज जस्ट अ नंबर, ये एक नंबर है, एज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज नंबर है। काम जितना आप करोगे उतना पैसे मिलेंगे, और आप तो जानते हो काम करो पैसे कमाओ, तुम सोसाइटी वाले भी थोड़ा रिस्पेक्ट देते हैं, अब जल्दी पैसे कमाएंगे तो जल्दी रिस्पेक्ट मिल जाएगी। तो जैसे बचपन में चाहे पहले अपने टीवी कैसे होते थे, ब्लैक एंड वाइट में आते थे, लेकिन टाइम के साथ अब कलर वाले टीवी आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चीज़ें अपग्रेड हो रही हैं। तो अगर हम लोग अपने आप को चाहे अपने बच्चों को अपग्रेड करें तो वो इंडिया के लिए बहुत एक मिसाल बन सकते हैं। तो मैं आप सब लोग से यही कहना चाहूँगा कि एसटीएस टेक्नोलॉजी ने मेरे को जैसे सिखाया, आप लोग को भी सिखा सकते हैं, आपके बच्चों को भी सिखा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ, मेरे को तो बहुत ज़्यादा बोलने की आदत है, अगर मैं बोलूँ तो 2 दिन बोलता रह जाऊँगा, इसलिए मेरी फैमिली मेम्बर्स भी बोलते हैं कि थोड़ा कम बोला करो, तो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा कम बोल रहा हूँ। चलिए, थैंक यू, नमस्कार। बहुत बढ़िया यश, थैंक यू सो मच।
of intellectuals and most valued guardians. On this beautiful evening of glittering star and dark blue sky, I'm Ananya with my co-host Pragya. We heartily welcome you all for this annual function 2023. Pragya, I want to ask one question to you. Yes, Ananya, of course you can. Do you ignore the small things in your life? No, we should never ignore small things in our lives because combination of small things makes large things. You have rightly understood what I want to explain. Yes, Ananya. Same with the case of nature. Yeah, right. Now it is going to be proved by the song Boond Boond Milke Bane Leher by the students of primary section. So, why to wait? Let's welcome them with great cheers of applause. Do you know this land, this sky, and the universe is all for us? Ananya, but how? Because in these days, if we want to purchase anything, Okay. Children go to ask money. Papa, we came home. How was your day, my children? Very nice. Papa, I want to say something to you. Tell it to me. Our school had decided for a school trip, so we want some money. School trips are very nice. You should go there. You will have a lot to learn. How much money do you want? Just 500 rupees? Oh, don't worry about money. Take 1,000, but go and enjoy. Thank you, Papa. You are the best. Papa, What happened? give me some money.
Money? But why? Because for the new dress. Dress? No need of any dress. Just go away and don't show me ever your face. But At home, mother and father start fighting. The children watch their parents. why did you go there without informing me? Don't you know that I am the principal of this house? I am taking admission for my 2 girls anyway. Why did you not inform me about school? Because. If I will inform you, you will argue me to give the education to girls also. Don't- But I don't think it important to educate them at all. Don't shout. You always fight with me. Where am I fighting? You are only fighting. Always blaming upon me. You don't know that girls and boys should be treated equally. I take an example of Kalpana Chawla and Bhavna Garg. They are not girls. No. I don't think it important to educate them. And also, do you think that this is Bhavna Kant and that is Kalpana Chawla? Not at all. And also, I don't want to have any Bhavna Kant or Kalpana Chawla in my house. I just want to have 2 servants. That's all. Papa, why are you shouting on mommy? It's your mistake. Why did you not tell about the admission? Now look what happened. That is not your business. Just go away. Go and study. 15 years have passed and the children have grown up. Papa, our result has been announced. Please sign in my report card. You failed in the exam? Yes, Papa, we failed in the exam. What you did? And today I read the newspaper and I came to know that my 2 daughters have become lawyers. What I did, I provided education to my 3 sons, but they failed in the exam. But my 2 sisters, my 2 daughters took the education seriously, and now they are on the top of the position, and that is lawyer. I am sorry that I did not think it important to educate my girls, but now I am proved wrong. Girls and boys should be treated equally. They should not be discriminated at all. And this happened just because of my child. I am proud of you, my child. Thank you, Papa. We are also proud of our sisters. Thank you, brothers. Thank you for making supporting to us. The parents are now proud and happy for their children.